तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं विद सॉल्यूशन रिवीजन फ्रॉम MIQ, स्टार्टिंग विद पेज नंबर 33। सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस आ रही हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है मोलैरिटी। लिखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला लिखो और यूनिट लिखो। नेक्स्ट है मोलैलिटी। लिखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, number of moles of solute present in 1 kilogram of solvent, 1 kilogram of solvent। फॉर्मूला लिखो। सी पार्ट है मोल फ्रैक्शन। देखो, it is ratio of moles of component, it is ratio of moles of component and total moles of solution, moles of component and total moles of solution। फॉर्मूला लिखो, नो यूनिट। हेनरी लॉ। लिखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। हेनरी लॉ, mole fraction of gas in solution is proportional to mole fraction of gas in solution is proportional to pressure of gas, is proportional to pressure of gas above solution, is proportional to pressure of gas above solution। फॉर्मूला लिखो। नेक्स्ट है KH। देखो, इट इज हेनरी कांस्टेंट, इट इज हेनरी कांस्टेंट it is equal to pressure of gas, it is equal to pressure of gas if mole fraction of gas is 1, it is equal to pressure of gas if mole fraction of gas is 1।
इसकी यूनिट प्रेशर की यूनिट होती है। उतारो। नेक्स्ट है, तो KH क्या है? KH प्रेशर है। कब? जब गैस का मोल फ्रैक्शन 1 है। तो KH इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द गैस व्हेन द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज 1। अगला आ रहा है बेन डिजीज, F पार्ट। देखो, इट इज डीकम्प्रेशन सिकनेस, it is decompression sickness caused due to, it is decompression sickness caused due to excess solubility of N2 gas, caused due to excess solubility of N2 gas in blood, excess solubility of N2 gas into blood, excess solubility of N2 gas in blood. It can lead to death. It can lead to death. नेक्स्ट है राउट लॉ फॉर लिक्विड मिक्सचर। देखो, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन is proportional to mole fraction of component. Vapor pressure of component in solution is proportional to mole fraction of that component. Is proportional to mole fraction of that component. PA proportional to XA, PA is equal to P naught A XA. देखो, नेक्स्ट है आइडियल सॉल्यूशन। देखो, विच ओबे राउट लॉ, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? विच ओबे राउट लॉ अंडर
all conditions of which obey Raoult law under all conditions of concentration, all conditions of concentration. देखो PS इज इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, डेल्टा V मिक्सिंग 0, डेल्टा H मिक्सिंग 0, AB attraction is equal to AA attraction and BB attraction. नेक्स्ट है एजियोट्रोप. देखो लिक्विड मिक्सचर having same composition, liquid mixture having same composition in solution and vapor phase. Liquid mixture having same composition in liquid and vapor phase. In liquid and vapor phase. बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख पा रहा हूं, ये कभी डिस्कस हुई नहीं है, हालांकि पता होनी चाहिए बट कभी डिस्कस नहीं हुई है, तो आप लिख लो क्योंकि कभी डिस्कस करी नहीं है. इट इज ओनली फॉर्म बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन. ये कभी आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करते. It is only formed by non-ideal solution. When mixed at certain composition. When mixed at certain composition. J part आ रहा है. Raoult law for solution containing non-volatile solute. लिखो vapor pressure of solution. Vapor pressure of solution. Sorry, relative lowering of vapor pressure. I'm really sorry. Relative lowering of vapor pressure. J part का आंसर दोबारा से. Relative lowering of vapor pressure is proportional to relative lowering of vapor pressure is proportional to mole fraction of is proportional to mole fraction of non-volatile solute. Is proportional to mole fraction of non-volatile solute. देखो फॉर्मूला. इतनी डेफिनेशन के बाद ये समझ में आ रहा है कि हमें चीजें लिखनी है, हमें फॉर्मूले लिखने हैं. आइडियल में भी आप देख रहे हो तो सब कुछ लिखवा दिया, कुछ नहीं जाना, 1 मिनट नहीं लगना. लंबी लंबी कहानियों से पेपर छूटता है. पेपर छूटता है ही नहीं केमिस्ट्री में, तो हम सोचे क्यों. ना कभी किसी का पेपर केमिस्ट्री का खराब होता है ना छूटता है. पेपर खराब होता है फिजिक्स का, उसमें सबसे ज्यादा लोग माता बनाते हैं. केमिस्ट्री का नहीं खराब होता. 95% सक्सेस रेट है जेएसआर में, बच्चे खुशी आते हैं. लास्ट टाइम झटका पहली बार लगा क्योंकि टॉपर हल गया. टॉपर को लगा कि यार साला फुल मार्क्स नहीं आ रहे. वो पेपर नहीं था ऐसा फुल मार्क्स वाला, एक के तो आए सिर्फ. उससे पहले 16 बच्चों के फुल आए थे. फुल कोई लड़ाई थोड़ी होती है. जेएसआर में आपको ये कल्चर नहीं दिया हमने. जिस टीचर के पास जाते हो उसकी कहानी सुनो.
मैं आपसे कह रहा हूं अब जो पेपर का फॉर्मेट है उसमें फुल बहुत कम बच्चों के आएंगे, लेकिन 90 प्लस अभी भी उतने ही रहेंगे। 150 बच्चों के हाथ हो गए तो आप खुशी तो आओगे, 150 बच्चा खुशी आएगा बाहर से आके, आपका पेपर नहीं छूटेगा। आप सेंसिबली लिखो, आप लिखो, क्योंकि आप कतराते हो लिखते हुए, आप लिखो, डेफिनेशन लिख रहे हो, फॉर्मूला लिखो, ऐसा मजबूत हो गया आंसर कि वो नंबर काट ही नहीं सकता। आइडियल में देखो सब कुछ तो लिख दिया आपने, छूटा क्या? कुछ भी नहीं। और इसमें कौन सा टाइम लगा, सब कुछ तो आता है तुम्हें। कहानियां अवॉइड करो ना, सटीक बातें लिखी, फॉर्मूला लिखा, हो गए फुल मार्क्स। नेक्स्ट आ रहा है बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट केबी। लिखो, इट इज डिफाइंड एज elevation in boiling point observed. It is defined as elevation in boiling point observed in a solution having 1 mole of non-volatile solute, having 1 mole of non-volatile solute dissolve in 1 kg of solvent. 1 mole of non-volatile solute dissolve in 1 kg of solvent. लिखो फॉर्मूला। नेक्स्ट है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट KF। लिखो, इट इज डिफाइंड एज डिप्रेशन। It is defined as depression in freezing point observed. It is defined as depression in freezing point observed in a solution containing depression in freezing point observed in a solution containing 1 mole of solute, 1 mole of non-volatile solute, 1 mole of non-volatile solute dissolve in 1 kilogram of solvent. Dissolve in 1 kilogram of solvent. KF क्या है? डेल्टा TF है। किसका? एक ऐसे सॉल्यूशन का जिसकी मोलैलिटी 1 है। 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व किया हुआ है इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर, ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ वाटर from a solution of low concentration to a solution of high concentration, from a solution of low concentration to a solution of high concentration through SPM
नेक्स्ट आ रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर. द मिनिमम एक्सेस प्रेशर, the minimum excess pressure, the minimum excess pressure that has to be applied, the minimum excess pressure that has to be applied on solution side, that has to be applied on solution side to prevent entry of water, to prevent entry of water from pure water, to prevent entry of water from pure water. Formula phi is equal to mRT. तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है कि जिस तरफ आपका हाई कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है उस तरफ कितना प्रेशर लगाए ताकि पानी की मूवमेंट बंद हो जाए. ये जो पानी आ रहा है ये पानी आना बंद हो जाए. दैट्स कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर. फॉर्मूला जरूर लिख कर रहा हो एमआरटी. रिवर्स ऑस्मोसिस, देखो जी, मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम ए सॉल्यूशन, movement of water from a solution of high concentration, उल्टी गंगा, movement of water from a solution of high concentration to a solution of low concentration, to a solution of low concentration through SPM, through SPM when excess pressure is applied, when excess pressure is applied on a solution of high concentration, when excess pressure is applied to a solution of high concentration, it is used for desalination of seawater. It is used for desalination of seawater. नमक वाले पानी से पानी अलग करना, desalination of seawater. तो अब की बार क्या करना होगा, वो जो solution of high concentration है उस तरफ प्रेशर लगाना होगा, इतना ज्यादा लगाना होगा कि पानी उल्टा मूव करना शुरू कर दे. That's called as reverse osmosis. वांटा फैक्टर देखो, it is ratio of, it is ratio of number of moles of solute, it is ratio of number of moles of solute finally present in solution, finally present in solution to the number of moles of solute initially taken, to the number of moles of solute initially taken. Number of moles of solute initially taken. देखो, iota is equal to 1 for non-electrolyte solute. Iota is equal to 1 for non-electrolyte solute. Iota is not equal to 1 for electrolyte solute. Iota is not equal to 1 for electrolyte solute.
तो आयोटा की वैल्यू 1 होती है फॉर ईमानदार सॉल्यूट और 1 नहीं होती फॉर धोखेबाज सॉल्यूट। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आ रहा है पेज 37। विच इज बेटर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, मोलैरिटी और मोलैलिटी? आंसर लिखो मोलैरिटी, मोलैलिटी ल, मोलैलिटी ल छोटा m, मोलैलिटी बिकॉज इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मोलैलिटी because it is temperature independent. Third, what is effect of temperature on solubility of ammonium nitrate in water? अमोनियम नाइट्रेट सॉलिड है, ये पानी में घुलता है, इसका घुलना एंडोथर्मिक है। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक हो और टेम्परेचर बढ़ा दें तो रिएक्शन गोज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिससे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। KOH का पानी में घुलना एक्सोथर्मिक है, इसमें हीट इवॉल्व होती है। रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो, टेम्परेचर बढ़ा दे, रिएक्शन गोज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, जिससे solubility will decrease. सर एक बार एक पार्ट वाला दोबारा बता दो, क्या हुआ था उसमें? अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक हो, अमोनियम नाइट्रेट जब पानी में घुलता है, उसे घुलने के लिए हीट चाहिए, तुम हीट दे रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो ली चैटलेट कहता है रिएक्शन गोज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड का मतलब और ज्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि उसे घुलने के लिए हीट चाहिए, तुम हीट दे रहे हो तो ज्यादा घुलेगा। KOH जब घुलता है तो हीट बाहर निकालता है, तुम हीट दे रहे हो। KOH हीट बाहर निकाल रहा है, तुम उसको बाहर से हीट दे रहे हो, रिएक्शन गोज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, इससे सॉल्युबिलिटी घटती है। नेक्स्ट है नेम द अट्रैक्शन प्रेजेंट इन फोर्थ। I2 एंड CCl4 लिखो। डिस्पर्जन, पहले आंसर लिख लो फिर समझा दूंगा, पहले अट्रैक्शन के नाम लिख लो। डिस्पर्जन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैंडरवॉल से बेहतर वर्ड डिस्पर्जन है, बोर्ड में हो सके तो डिस्पर्जन लिख कर आना। वैंडरवॉल लिखा होगा तो गलत नहीं है, लेकिन डिस्पर्जन ज्यादा अच्छा है। NaClO4 एंड वाटर, आयन डाइपोल। एल्कोहल एसीटोन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एसीटोनाइट्राइल और एसीटोन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। एक्सप्लेनेशन सुन लो, सुनने के लिए है सिर्फ। I2 नॉन पोलर है, लिख लो। I2 के नीचे लिखो नॉन पोलर, दोनों एटम सेम है, नॉन पोलर। CCl4 नॉन पोलर, क्योंकि इसमें 4 वेक्टर आएंगे, चारों की मूवमेंट 0 हो जाएगी। ये दोनों नॉन पोलर हैं, मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो तो उनके बीच की अट्रैक्शन होती है वेंडरवॉल, जिसको डिस्पर्जन भी कहते हैं। बी पार्ट, NaClO4 के नीचे लिखो आयनी कंपाउंड। NaClO4 आयनी कंपाउंड है, ये पानी में जाके Na प्लस और ClO4 माइनस आयन बनाता है। पानी खुद डाइपोल होता है, सामने से आयन आ जाता है, अट्रैक्शन फॉर्म हो जाती है आयन डाइपोल। एल्कोहल में देखो O के साथ H है, बॉक्स में लो। O के साथ H बॉक्स में लो एल्कोहल में। एसीटोन का O बॉक्स में लो। अगर दो अलग मॉलिक्यूल हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन, अगर दो अलग मॉलिक्यूल हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन, दोनों में फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से कोई एक होना चाहिए। दोनों में कौन है? ऑक्सीजन। दोनों में से किसी एक में, दोनों में जरूरत नहीं है, मिनिमम किसी एक में O के साथ H होना चाहिए, F के साथ H होना चाहिए, N के साथ H होना चाहिए, O के साथ H है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डी पार्ट, एस्टोनाइट्राइल के नीचे लिखो पोलर, एसीटोन के नीचे लिखो पोलर। दोनों मॉलिक्यूल पोलर हैं, पर दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते, चेक करो।
N के साथ H नहीं है, चेक करो, O के साथ H नहीं है, पोलर हो पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते, तो क्या बनाओगे? डाइपोल डाइपोल। फिफ्थ, विच हैज हायर KH, हीलियम या N2? सोच लू कैसे? KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। जो गैस पानी में ज्यादा घुलती है उसका KH कम होता है, N2 पानी में ज्यादा घुलती है। इसका आंसर है हीलियम। आपसे कहा गया था हायर KH किसका है, जवाब है हीलियम। रीजन, लीस्ट वाटर सॉल्युबल, क्योंकि ये पानी में बहुत कम घुलती है। लीस्ट वाटर सॉल्युबल, जो गैस कम घुलेगी उसका KH ज्यादा होगा। O2 293 पे या 303 पे? KH की वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बोलो जी, आंसर हो गया 303। आंसर है 303 केल्विन। इस पे KH ज्यादा होगा O2 का। रीजन, KH की वैल्यू टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। लिखो क्यों है, बोलो। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी तो KH बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस कम घुलेगी, जो गैस कम घुलती है उसका KH ज्यादा होता है। सिक्स्थ, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन इज शोन बाय क्लोरोफॉर्म एसीटोन? बहुत ही मशहूर केस, नेगेटिव डेविएशन। देखा, उल्टा बोला ना मैंने, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ। लिखो, नंबर 1 केस है ये नेगेटिव का। अगर एक एग्जांपल याद करके जाना है नेगेटिव का तो वही है। एसीटोन क्लोरोफॉर्म अकेले होते हैं तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फॉर्म करते हैं, आमने सामने आने पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना बैठते हैं। एल्कोहल एंड वाटर, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ, क्योंकि एल्कोहल और पानी में कभी उतना प्यार नहीं हो पाता जितना प्यार दो पानी आपस में करते हैं। याद रखो, एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जरूर बन रही है पानी के साथ, लेकिन एल्कोहल में एक कलेश भी है, वो इथाइल है। इथाइल वाटर रिपेलिंग है, वो कभी पानी से गहरी दोस्ती नहीं कर पाएगा। तो पॉजिटिव डेविएशन का नंबर 1 केस है एल्कोहल वाटर। 7th आ रहा है, वाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज द बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू फाइंड द मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट? तो फर्स्ट रीजन, कैन बी मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर। सबसे बड़ा रीजन तो यही है। एलिवेशन में उबालना पड़ेगा, डिप्रेशन में जमाना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं करना। मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर, hence good for protein polymer, hence good for protein polymer which are temperature sensitive, good for proteins polymers which are temperature sensitive. सेकेंड लिखो, कंसंट्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मोलैरिटी। दूसरा रीजन, मोलैरिटी में मेजरमेंट कर सकते हैं। कंसंट्रेशन कैन बी मेजर्ड इन मोलैरिटी। याद रखो, तुम लैब में जा रहे हो, ठीक है, तुम्हारे 2 साल ऐसे ही बीते हैं, तुमने बेहोशियों में ही काम करे हैं, लेकिन इतने सारे काम करने पे भी कभी मोलैलिटी वर्ड यूज नहीं हुआ लैब में। कभी मोल फ्रैक्शन नहीं निकाला किसी का लैब में, निकालिए तो क्या, मोलैरिटी। टाइट्रेशन कर रहे हो, मोलैरिटी। मोलैरिटी में सॉल्यूशन बनाने आसान होते हैं क्योंकि वॉल्यूम मेजर करना मास से ज्यादा आसान है। लैब में वॉल्यूम ज्यादा आसानी से मेजर किया जा सकता है एज कंपेयर टू मास, इसलिए मोलैरिटी पाई इज इक्वल टू MRT, मोलैरिटी का यूज होगा, जो अपने में एक एडवांटेज है। थर्ड, वैल्यू इज एब्सोल्यूट एंड लार्ज। थर्ड रीजन, 3 रीजन तीनों दे रहा हूं, वैल्यू इज एब्सोल्यूट एंड लार्ज। एक्यूरेटली मेजर्ड, value is absolute and large, accurately measured. Accurately and large, accurately measured.
एलिवेशन की दिक्कत, डेल्टा टीबी बहुत कम होता है, डेल्टा टीएफ बहुत कम होता है, बहुत कम चीजें, स्मॉल चीजें मेजर करनी मुश्किल लगती है। नेक्स्ट, ड्रॉ द कर्व। आओ जी कर्व बनाते हैं। पहला कर्व है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, किसके बीच में बनाना है? वेपर प्रेशर और टेम्परेचर। दो लाइनें, पहली लाइन, पहली लाइन सॉल्वेंट की, दूसरी लाइन सॉल्यूशन की। ये 1 atm का मार्क है। इस पे जो भी टेम्परेचर होगा दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, इस पे जो भी टेम्परेचर होगा दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इनमें जो डिफरेंस होगा दैट इज डेल्टा टीबी। डिप्रेशन का ग्राफ जो हमेशा बच्चों को डिप्रेशन देता है, ये भी वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ही ग्राफ है। पहली लाइन सॉल्वेंट, लेकिन ग्राफ जर्क खाता है, क्योंकि जब जमा रहे होते हो तो लिक्विड से आता है सॉलिड, सॉलिड के वेपर प्रेशर बहुत कम होते हैं, एकदम झटका लगता है। दूसरी लाइन सॉल्यूशन, जहां पे इसने झटका खाया वही इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। जहां इसने जर्क खाया है वो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, दोनों में डिफरेंस डेल्टा टीएफ है। तीसरा कौन सा कर्व है? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ। 2 मिनट तो देख लो फिर लिख लेना। डबल ग्राफ, बोलो नीचे क्या लेना है? यहां पे कौन है? वेपर प्रेशर। यहां भी कौन है? वेपर प्रेशर। नीचे कौन है? मोल फ्रैक्शन। 3 लाइनें पॉजिटिव का ग्राफ है, 3 लाइनें ऊपर की तरफ लाइन खींचनी है। तीन लाइनें सब ऊपर की तरफ। कहते हैं ना यहां पे एक्स ए 1 एक्स बी 0, सिर्फ ए पी नॉट ए, एक्स ए 0 एक्स बी 1 सिर्फ बी पी नॉट बी। जो लाइन पी नॉट ए से टच कर रही है वो पी ए की लाइन है, जो पी नॉट बी से टच कर रही है वो पी बी की लाइन है, जो थर्ड लाइन ऊपर है वो पी एस की है। जितना वेपर प्रेशर आना चाहिए उससे ज्यादा आ रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है। उभरे हुए ग्राफ होंगे ये, नेगेटिव के नीचे ग्राफ होंगे और आइडियल में स्ट्रेट लाइन।
हम्म डेल्टा टी बी डिपेंड अपॉन डब्ल्यू बी एंड एम बी रेशो। तुम्हारी वो रेशो सेम है कि नहीं है वो देख लो। इट डिपेंड अपॉन द रेशो डब्ल्यू बी बाई एम बी। भाई मोल सेम होने चाहिए ना, मास से तो मतलब नहीं है हमें। मोल सेम होंगे तो डिप्रेशन सेम आएगा, मोल अलग होंगे तो अलग आएगा। डिपेंड करता है तुमने क्या लिया। अब तुमने 180 ग्राम ग्लूकोज लिया है तो वो है तो 1 मोल। यूरिया 60 ग्राम लिया है वो भी तो 1 मोल ही है। फिर तो अलग आएगा ही आएगा, फिर क्यों पूछ रही है। नेक्स्ट आ रहा है, व्हाट इज द कॉज ऑफ। नहीं बनाया अभी, जल्दी बनाओ। व्हाट इज द कॉज ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लिखो। ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, on adding non-volatile solute in a solvent, on adding non-volatile solute in a solvent, tendency of solvent molecules to evaporate decreases. Tendency of solvent molecules to vaporize decreases. Tendency of solvent molecules to vaporize decreases. Hence, less vapors are formed. Hence, less vapors are formed. जब सॉल्वेंट अकेला होता है, डायग्राम नहीं बनाना। जब सॉल्वेंट अकेला होता है तो सारे मॉलिक्यूल सरफेस पे सॉल्वेंट के होते हैं, लेकिन अगर उसमें हम सॉल्यूट डाल देते हैं नॉन वोलेटाइल तो अब कुछ मॉलिक्यूल किसके हो जाएंगे, सॉल्यूट के। पर उसको उड़ना तो आता नहीं है, इसलिए पहले के मुकाबले कम सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल उड़ेंगे, जिससे वेपर प्रेशर विल डिक्रीज। वही लिखवाया है, टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट टू वेपराइज डिक्रीजेस। हाँ जी, व्हाट इज द कॉज ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। लिखो, ड्यू टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एलिवेशन का कॉज है RLVP, ड्यू टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर vapor pressure of solution become less. Vapor pressure of solution become less. Hence, more heat is required. Hence, more heat is required to make vapor pressure. More heat is required to make vapor pressure of solution equal to 1 atm. More heat is required to make vapor pressure of solution equal to 1 atm. किसी भी लिक्विड को अगर उबालना है तो उसका वेपर प्रेशर 1 atm तक लेके जाना पड़ेगा, जो नॉर्मल एक्सटर्नल प्रेशर है। अगर हम लोग पानी में नमक डाल देते हैं तो फिर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के कारण जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम हो जाता है। इसलिए वेपर प्रेशर 1 atm ले जाने के लिए सॉल्यूशन को सॉल्वेंट के मुकाबले
ज्यादा हीट करना पड़ेगा। व्हाट इज द कॉज ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? लिखो ड्यू टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दोनों का कॉज RLVP ही है, ड्यू टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस ड्यू टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। Vapor pressure of solution decreases, hence vapor pressure of solution decreases, hence less temperature is required, hence less temperature is required to freeze solvent. Less temperature is required to freeze solvent in solution. टेंथ आ रहा है, व्हाट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस? लिखो जी, डीसेलाइनेशन ऑफ सी वाटर। डीसेलाइनेशन ऑफ सी वाटर, समुद्र के पानी से नमक अलग करना। नेम द SPM यूज इन इट? सेलुलोज एसीटेट, क्योंकि वो हार्ड होती है। सेलुलोज एसीटेट। इलेवेंथ, डायग्राम बना हुआ है, दो सॉल्यूशन है। लेफ्ट साइड पे जो सॉल्यूशन ए है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर 5 बार है, सेकेंड सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर 10 बार है। क्लासिफाई ए एंड बी एज आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाँ जी, ए क्या है? लिखो ए इक्वल टू हाइपोटोनिक, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है उसे हाइपोटोनिक कहते हैं। बी इक्वल टू हाइपरटोनिक, दो सॉल्यूशंस जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, दैट्स कॉल्ड हाइपरटोनिक। और जो अगर दोनों का बराबर होता तो आइसोटोनिक। आगे बढ़ो, तो बी हाइपर है, ए हाइपो है। 12th आ रहा है, व्हाट इज द कॉज ऑफ एबनॉर्मल मोलर मासेज ऑफ सॉल्यूट ऑब्टेन्ड इन द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज मेजरमेंट? कई ऐसे सॉल्यूट हैं जिनके मोलर मासेज जब निकाले जाते हैं एलिवेशन से, डिप्रेशन से, ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो जितने आंसर आने चाहिए उतने नहीं आते, उससे कम या ज्यादा आते हैं। उसका कारण है एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, धोखेबाज सॉल्यूट। लिखो द कॉज ऑफ एबनॉर्मल मोलर मासेज ऑफ सॉल्यूट। द कॉज ऑफ एबनॉर्मल मोलर masses of solute is association or dissociation? Is association or dissociation? Association or dissociation of solute in solution? Association or dissociation of solute in solution? फर्स्ट पॉइंट लिखो, NaCl dissociate in water. NaCl dissociate in water shows less molar mass than expected. NaCl dissociate in water shows less molar mass than expected. Acetic acid associate in benzene. Acetic acid associate in benzene shows higher molar mass than expected. Shows higher molar mass than expected.
इसलिए कह रहा हूँ ये बुकलेट बहुत काम की चीज है। ये MIQ वाकई MIQ है, कहानीबाजी नहीं है। और आप खुद देख रहे हो कि जब मौका आएगा ये बुकलेट आपकी बड़ी हेल्प करेगी। शॉर्ट में रिवाइज करने के लिए जो 4-5 छुट्टियां मिली है केमिस्ट्री में, उस पर आगे बात करेंगे, अभी बहुत समय है, अभी पढ़ने का समय है। 10 दिन आपसे कहे गए हैं, निकालो जैसे भी लगते हैं निकालो, केमिस्ट्री पे लगाओ 10 चैप्टर 10 दिन, बात खत्म। तो फिर आगे का आगे बात करेंगे। लेकिन आप खुद देख रहे हो हर रीजनिंग क्वेश्चन यहाँ कवर हुआ है। 13 क्वेश्चन आ रहा है, 3 सोल्यूशन है ABC। ए की कंसंट्रेशन है 1 मोलर, बी की 0.1 मोलर और सी में 0.01 मोलर। अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। तो आपसे कहा था वांट ऑफ फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप देख सकते हो, कोई भी। ये देखो ऑस्मोटिक प्रेशर, ईमानदार हो तो MRT, धोखेबाज हो तो आयोटा MRT। आयोटा क्या हो गया, पाई बाय MRT। आयोटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी विच इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो आयोटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन है। तो सबसे कम कंसंट्रेशन किसमें है, सी में, उसका आयोटा ज्यादा होगा, फिर बी का, फिर ए का। उतारो। न्यूमेरिकल शुरू हो रहे हैं। KSP कॉपर सल्फाइड का 10⁻⁸ है। मैक्सिमम मोलैरिटी निकालनी है। मैक्सिमम मोलैरिटी बॉक्स में लेके लिखो, सॉल्युबिलिटी। मैक्सिमम मोलैरिटी इज सॉल्युबिलिटी। कॉपर सल्फाइड अगर S मोल घुलता है इन 1 लीटर तो कॉपर आयन कितने बनेंगे, S मोल पर लीटर। सल्फाइड कितने बनेंगे, S मोल पर लीटर। KSP क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। KSP होता है आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। KSP दिया हुआ है 10⁻⁸। यहां से सॉल्युबिलिटी आ जाएगा 10⁻⁴ मोल्स पर लीटर। KSP होता है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस।
हर टॉपिक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने असेंबल करे हैं, हमेशा से यही बोलते आए हैं, आपको वही करा भी रहे हैं। हाउ मेनी ml ऑफ 1/10 मोलर HCl रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट हैविंग इक्वल मोल्स? सर एक बार सोडियम लास्ट टाइम कार्बोनेट वापस दिखा दो। x ग्राम है, हाँ बोलो। लास्ट लाइन। थोड़ा जल्दी लिखना यार। सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का मिलाकर मास 1 ग्राम है, तो सोडियम कार्बोनेट अगर x हो गया तो कितना हो गया बाइकार्बोनेट? 1 माइनस एक्स। डन सर, डन डन। इसका मोलर मास 106 है, इसका मोलर मास 84 है। क्वेश्चन में कहा है दोनों के मोल्स बराबर हैं। और हम यहीं से शुरू करते हैं। गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। सॉल्व करेंगे, यहां से x आ जाएगा 106 बाय 190। इसका मतलब कितने मोल्स हो गए सोडियम कार्बोनेट के? x बाय 106 था, x की वैल्यू आ गई है 106 बाय 190, 1 बाय 190। क्योंकि दोनों के मोल्स बराबर हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट के मोल्स भी कितने हो जाएंगे? 1 बाय 190। तो दोनों के मोल्स निकल गए। अब देखते हैं HCl कितना रिक्वायर्ड होगा। सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है HCl से, ये इक्वेशन आती है। तो 1 बाय 190 मोल सोडियम कार्बोनेट के लिए 2 बाय 190 मोल HCl की जरूरत पड़ेगी। सोडियम बाइकार्बोनेट HCl के साथ ऐसे रिएक्ट करता है। 1 बाय 190 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए 1 बाय 190 मोल HCl चाहिए होगा। रेशियो 1:1 है। टोटल मोल जो HCl के रिक्वायर्ड होंगे दोनों को न्यूट्रलाइज करने के लिए, वो हो गया 3 बाय 190। मोलैरिटी है 1/10, मोल्स ऑफ HCl है 1 बाय 190। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में निकल जाएगा। वो आपका अपना काम अपने आप करते रहना। लिखो।
अगला क्वेश्चन आ रहा है, सैंपल हैज 10 ppm ऑफ सोडियम आयन, फाइंड मोलैलिटी। 10 ppm सोडियम आयन का मतलब है 10 ग्राम सोडियम आयन प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। हमें निकालनी है मोलैलिटी, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सॉल्यूट कौन है? सोडियम, गिवन मास 10 ग्राम, सोडियम का एटॉमिक मास 23, सॉल्वेंट का मास कितना होगा? 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन का मास है, उसमें से 10 माइनस करेंगे, रफली 10 की पावर 6 ग्राम ही आ जाएगा, पर हमें किसमें चाहिए? किलोग्राम में। तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, यूनिट आ जाएगी मोल्स पर केजी। सॉल्यूशन अपने आप करना है, उसमें मैंने कोई फोकस नहीं किया हुआ। कॉन्सेप्ट सीखो, टॉपिक रिवाइज करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फिलहाल आप पढ़ रहे हो कंसंट्रेशन टॉपिक के। लास्ट क्वेश्चन है कंसंट्रेशन टॉपिक का, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन निकालो। 10% NaOH बाय मास डेंसिटी दे रखी है। तो सॉल्यूट है यहाँ पे NaOH, सॉल्वेंट है पानी। 10% NaOH बाय मास का क्या मतलब है? 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन है? NaOH, इसका मोलर मास है 40, सॉल्वेंट पानी, मोलर मास 18, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको दे रखी है 2 ग्राम पर ml। हाँ जी, पहले निकालनी है मोलैलिटी, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। गिवन मास 10, मोलर मास 40, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 90 ग्राम, चेंज इन किलोग्राम, मोल्स पर केजी। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, गिवन मास 90, मोलर मास 18, कोई यूनिट नहीं होती इसकी। डेंसिटी निकालने के लिए वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम हमें नहीं दे रखा। वेट ऑफ सॉल्यूशन है 100 ग्राम, डेंसिटी है 2 ग्राम पर ml। 50 ml आंसर आएगा, लीटर में चेंज करेंगे पुट करने से पहले। मोलैरिटी, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये क्वेश्चन आपके हर रिवीजन का पार्ट होना चाहिए, ताकि एक साथ आप 4 डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन को यूज कर सको। मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, सबका इस्तेमाल हो गया।
नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं फ्रॉम हेनरी लॉ। 2 क्वेश्चन रखे हैं मैंने हेनरी लॉ के। ये क्वेश्चन मुझे हमेशा से बेटर लगते हैं, बोर्ड में भी ज्यादा आए हुए हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S एट STP। STP का मतलब ये हो गया कि गैस का जो प्रेशर है वो आप 1 atm ले लोगे। आपको मोलैलिटी दे रखी है 0.01 मोलल। गैस का क्या मतलब है? 0.1 मोल H2S डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। यहां से H2S के आपके पास मोल्स आ जाएंगे। पानी का मास कितना आ गया? 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम पानी में पानी के कितने मोल्स होते हैं? 55.5। KH की वैल्यू आपको निकालनी है। तो KH निकालने के लिए पहले आपको गैस का मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। H2S के मोल्स कितने हैं? 0.01, और पानी के मोल्स कितने हैं? 55.5। यहां से KH आ जाएगा। KH की वही यूनिट होती है जो प्रेशर की यूनिट होती है। एक किलोग्राम पानी, 1000 ग्राम पानी, 55.5 मोल्स पानी। याद रखो इसको। लास्ट क्वेश्चन है हेनरी लॉ का, न्यूमेरिकल। फाइंड द मोल्स ऑफ N2 डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। KH आपको दे रखा है किलो बार में, और प्रेशर ऑफ N2 भी आपको गिवन है। प्लानिंग, पहले मोल फ्रैक्शन निकालो हेनरी लॉ का इस्तेमाल करके, फिर मोल फ्रैक्शन से आप N2 के मोल्स निकाल सकते हो। हर न्यूमेरिकल में पहले प्लानिंग किया करो। तो तुम्हें गिवन है प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन और KH की वैल्यू 100 किलो बार। तो पहले इसका इस्तेमाल करके मोल फ्रैक्शन निकाल लो N2 का। हेनरी लॉ का फॉर्मूला लगा दिया। उसके बाद बस मोल फ्रैक्शन का ही फॉर्मूला लगाना है। पानी 1 लीटर है। 1 लीटर पानी, 1000 ml पानी। पानी की डेंसिटी 1 होती है। 1000 ग्राम पानी, 1000 ग्राम पानी, 55.5 मोल्स पानी। नेगलेक्ट करेंगे इसको।
N2 के मोल्स निकल जाएंगे। यहां तक लिखो, एक बर्गर ब्रेक लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। जो ऑनलाइन बैठे तुम अपने आप मैकडी से ऑर्डर कर लो।